Ready. Good evening to all, everyone. How are you? Hope you will be fine. Once again, I am in front of you. As I told you, as I promised with you, today is Saturday and today class is subjected on history, same subject, but the era is changed. The era is now medieval Indian history. Why I choose medieval Indian history? There are some reason for you people especially. Okay? हमने आपको पिछली दफ़ा जो सैटरडे को पढ़ाया था वो एक बेसिक पॉइंट था. वो बेसिक पॉइंट ये था कैलेंडर्स, कार्बन डेटिंग एंड AD, BC, present before Christian era. There are something little bit remain. Today I have to complete and then we'll start the proper history class. तो proper history class की शुरुआत करने जा रहे हैं पर उससे पहले थोड़ी सी जो बची हुई है उसको निपटा ले. ठीक है? आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छा लगेगा और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी हमसे बातचीत करते रहेंगे, अपने सवाल दागते रहेंगे. ठीक है? तो थोड़ा सा बोर्ड वर्क कर लिया जाए. वेल एवरीवन, medieval India. Medieval India history. So, our today's class topic, you know better. Today's date is 23rd November 2019. Subject is history. It is medieval India. And 647 AD से लेकर 1707 तक का जो टाइम है that is considered the time medieval Indian history. It is exact beginning is considered the death of King Harshvardhan. That is considered the last Samrat of ancient India history. And till death of Aurangzeb Alamgir I, the sixth Mughal emperor, that is considered the earlier Mughal era. On 3rd of March, his death time. Well, day. So in that respect, we have to talk about. But further to go ahead, we have to create more our back class. Back class को थोड़ा सा पूरा करके फिर आगे बढ़ते हैं. Well, okay.
This is Christian era timeline. As I told you, this is 57 BC. This is 1 AD, 78 AD, 319 AD, 606 AD, 622 AD, 1469 AD, and this year is going on 2019 AD, 2019. So look here, in that way, look here. Timeline according to Christian calendar, 57 BC, 1 AD, 78 AD, 319 AD, 606 AD, 622 AD, 1469 AD, and thus this year is going on 2019 AD. So there are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Among them, this is the present year, but that is the calendars, beginning of calendars. As you know that last time Vikram calendar, Christian calendar, Saka calendar, Gupta calendar, Harsh calendar, Hijri calendar, Nanak calendar. So there are 7 calendars. We have to understand there are 7 calendars. Well, now listen. These are 7 calendars we have to understand. There is a very simple question always asked in some important exams, not general exams but some upper mode exams. What? Listen firstly questions. Your question is very clear. When the present Christian calendar year convert into Vikram calendar, then which year is going on? I am repeating my question. सवाल होता है, अगर वर्तमान ईसाई संवत को विक्रम संवत में बदल दिया जाए तो बताइए वर्तमान में कौन सा विक्रम वर्ष चल रहा होगा या चल रहा है. बहुत सिंपल एंड सोबर. लुक ऑन द बोर्ड. टू 2019 2019 is going on Christian calendar and you have to convert into Vikrama. Just you have to plus 57 and just it is 2070 Vikram. Look on the board, look on the board. From first Christian calendar to whatever going on is 2019. This is the extended part, that is the back part, BC. So when you have to Christian calendar convert into Vikramas, that means firstly you have right to the present year, that is present year. Now present year is total counting is 2019. Then you have to addition. Addition is 57. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 57. This 57s you have to be plus here. So this 57 is plus here. That answer will be 2076. It is very good question and you have to remember. ये एक जनरल क्वेश्चन है, आता ही है, तो आपका एक क्वेश्चन हो गया. जब BC से कन्वर्ट करने की स्थिति है तो प्लस करेंगे, अगर AD से ही निकाल के दे तो माइनस कर देंगे. माइनस करना है, तो एक क्वेश्चन आपका क्लियर हुआ. क्वेश्चन नंबर 2. The same theory apply for next question and question is as when the present year, Christian calendar year, present year
convert into Saka's calendar, then which present year is going on as a Saka calendar? वही रिपीट सवाल है बेटा. अगर वर्तमान ईसाई संवत को विक्रम ने सका संवत में बदल दे तो कौन सा शक संवत चल रहा होगा? अब देखिए आप बोर्ड पर. This is Christian calendar is going on since first, and the 78 is Sakas. So 78 years is the past, part of our Christian calendar. So this 78 years will reduce, minus. How? Look. 2019 minus 78. Now remaining is what? 1941. So it is converting Saka. Look here. Now it is very clear. Now here is that when the present Christian calendar convert into Saka calendar, then which year is going on? 1941. Now it is minus because the 78 is part of total Christian calendars. So it will be reduced. The same with Gupta, the same with Harsh. Well, very simple to understand. This question is very important. गांठ बांध लीजिए. आते हैं सवाल. तो बहुत सिंपल है. एडी से आए माइनस, बीसी से आए प्लस, और एक ही तो बीसी है तो प्लस कर लीजिए. या तो रट लीजिए या कॉन्सेप्ट समझ लीजिए. तो कॉन्सेप्ट समझ लेना ज़्यादा अच्छा है. राइट नाउ अब इससे आगे बढ़ना है. ओके, इस टाइम लाइन को समझना जरूरी था बेटा, इसलिए उस दिन समय नहीं था, आज समय आ गया, मैं टाइम लाइन आपको बता दिया. तो ये याद रखने की चीज़ है. ओके, अब हम दूसरे सेगमेंट में चलते हैं. मैंने बताया था कुछ चीज़ें, तो उसको मैं बताता हूँ आगे. ओके, पॉइंट आउट इट. इसे उतार लीजिए बेटा. Now, look, that is very important. 26 November 1949. As you know, it is the particular date and year that our constitution, भारत का संविधान इम्प्लीमेंट हुआ. मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रमी 2006. बहुत सिंपल है. एक क्वेश्चन आता है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ. इम्प्लीमेंट, इनैक्टमेंट, इन्फोर्समेंट, यानी कब क्रियान्वित हो गया, ये मतलब है. तो बस गांठ बांध लीजिए, वो 26 नवंबर 1949 अकॉर्डिंग टू क्रिश्चियन कैलेंडर था. और जब यही सवाल दोहरा दे कि विक्रम संवत के अनुसार भारत का संविधान कब लागू हुआ, अकॉर्डिंग टू विक्रम कैलेंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया व्हेन इम्प्लीमेंटेड अकॉर्डिंग टू विक्रम, then how you have to be go? In our preamble, these word is already written according to preamble.
According to our preamble, our constitution implemented 26 November 1949. That was in Vikrama's Miti Margashirsh Shukla Paksh. मार्ग सिर शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रमी 2006. ये याद रखना है. हाउ? लुक द सेम थ्योरी यू हैव टू अप्लाई. लुक हियर. 1949 plus 57, it is 2006 Vikrami. Look, when 1949 Christian calendars that present years convert into Vikrama's calendar, then what you have to rule apply? The rule is same, plus 57. So when 1949 added 57, it will be 2006. So very simple to understand here, 2006. ये आपके संविधान के प्रस्तावना में लिखा हुआ है. हमारा जो संविधान है, जो हमारे बाबा साहब अम्बेडकर ने और बाकी तमाम लोगों ने मिल करके रचे, क्रिएट किया, सृजन किया, उसी संविधान की बात कर रहा हूँ. तो बहुत सिंपल तरीका था और आपको समझना है. वही मेथड का इस्तेमाल हमने यहाँ किया आपको समझाने के लिए. तो अब सिर्फ इतना समझना है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो क्रिश्चियन कैलेंडर पूछ रहा है 26 नवंबर 1949. भारत का संविधान विक्रम कैलेंडर के अकॉर्डिंग कब लागू हुआ? जो ब्रैकेट में लिखा है मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रमी 2006, ये बोलना है. आंसर क्लियर. और कैसे समझना है? तो ये अब इसी तरीके से अब देखिए, फैंटास्टिकली आपको समझ में आ जाएगा. अब बात करते हैं, ठीक है? चलिए नेक्स्ट की ओर बात करें. अब आपके पास है नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए, ठीक है, क्या क्या होता है. तो मैं एक चीज़ बता दूं, फिर हम आगे मिडाइवल इंडिया में बात करूंगा, वो मैं समझा दूं अच्छे से आपको. लुक एवरीवन, भारत का संविधान लिखे जाने का कार्य कब समाप्त हुआ? 26 नवंबर 1949. The writing work of Constitution when ended? 26 November 1949. One thing is clear. Second, our Constitution according to preamble when implemented? Same. 26 November 1949. According to our preamble. You know that? According to our preamble. Two questions. Third questions. Our constitutions partly when implemented. हमारा संविधान आंशिक तौर पर कब लागू हुआ? सेम 26 नवंबर 1949. क्लियर? हमारे संविधान का मूल अधिकारों से जुड़े प्रावधान कब लागू हुए? 26 नवंबर 1949. The fundamental rights sections of our constitution when implemented? Same. Answer is same. अब आइए, citizenship related provisions when implemented? Same. 26 नवंबर 1949. यानी हमारे संविधान के नागरिकता से जुड़े प्रावधान कब लागू हुए? यही है 26 नवंबर 1949. अब फिर सुनिए, संविधान के संदर्भ में देखें तो आपसे पूछेगा व्हाट वाज द लास्ट सिटिंग या व्हेन कंसीडर्ड द लास्ट सिटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली. तो ध्यान रखना है, संविधान लिखे जाने के पर्पज से जो सिटिंग पर सिटिंग हो रही थी, उसके तहत जो लास्ट सिटिंग थी यही 26 नवंबर 1949. कोई डाउट नहीं होना चाहिए. कोई कहे अगर ये कि 24 जनवरी 1950, तो याद रखिए वो क्या था? गैदरिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबलीज मेंबर. गैदरिंग, समवेत हुए थे, इकट्ठा हुए थे, सेशन सेटिंग समाप्त. अब उनकी गैदरिंग थी, और वो गैदरिंग किस पर्पज से थी? आपको भी पता है, सिग्नेचर करने के लिए था संविधान सभा पर एंड व्हाटसोएवर. तो याद रखना है, गैदरिंग अलग चीज़ है एंड द लास्ट थिंग्स इज डिफरेंट थिंग्स. तो मैंने कहा कि लास्ट सिटिंग तो यही थी 26 नवंबर 1949. अगर आपसे पूछता है
The Federal Court of India has given a new name, the Supreme Court of India. When? 26 नवंबर 1949. तो ये ध्यान में रखना है. अगर आपसे ये कहता है कि भारत का संघीय न्यायालय को सर्वोच्च न्यायालय का नाम, सुप्रीम कोर्ट का नाम कब दिया गया, तो भी यही है. 2016 सब इंस्पेक्टर दिल्ली पुलिस एग्जाम पूछा जा चुका है, इसलिए कहीं कुछ सोचना नहीं है, ये सब सवाल तय हैं. हाँ, अब एक सवाल बता दूं. जब आपसे ये पूछे कि भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब लागू हुआ, फुल्ली व्हेन इंप्लीमेंटेड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, तो आप आंसर बदल दीजिए. यू नो एवरीवन, 26 जनवरी 1950. तो 8 सवालों का मालिक यही है, 26 नवंबर 1949. ये ध्यान में रखना है, नो डाउट, ये हमको समझना होगा. ठीक है. अब मिति मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष विक्रमी संवत का मतलब क्या है, वो मैं समझाता हूं आपको. Look, अकॉर्डिंग टू विक्रम कैलेंडर, जिसे हम हिंदू संवत भी कहते हैं, उसके परिप्रेक्ष्य में हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं बेटा आपसे. कोई कमी हो तो आप मुझे नेक्स्ट क्वेश्चंस बोलिएगा. ठीक है, सवाल पूछिएगा. भारत के संदर्भ में देखें तो हम जिस तरह से कैलेंडर की बात करते हैं, उसमें क्या करते हैं, 2 पक्ष होते हैं जनरली एक महीने में, और एक शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष. जब चांद्र की कला, चंद्र कला जब बढ़ रही है, यानी उसके उभार आ रहे हैं, मैक्सिमम पार्ट्स दिख रहे हैं, चंद्र कला बढ़ रही है, तो उजाला रात में भी ज़्यादा होता है, उसको आप कहते हैं शुक्ल पक्ष. शुक्ल मतलब सफ़ेद होता है, उजाला. कृष्ण मतलब काला. कृष्ण पक्ष जब डार्कनेस बढ़ता है, तो यू नो एवरीवन, 15 दिन उजाला बढ़ता है, 15 दिन डार्कनेस बढ़ता है. तो हम इसे शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में 2 पक्ष, फोर्टनाइट पक्ष, 15 दिन को एक पक्ष कहते हैं विक्रम कैलेंडर के अकॉर्डिंग. तो बेटा जनरली मान लीजिए 1 से 15 क्या है, तो वो है आपका 7, 1 2 3 4, उसी में ना 7 तारीख आएगा. तो 1 तारीख से लेकर 15 तारीख के बीच में ही 7 तारीख आएगा. और फिर 15 से 30 का दरमियान जो होगा, उसे आप क्या कहेंगे, कृष्ण पक्ष. तो शुक्ल पक्ष, कृष्ण पक्ष, ये समझना है. अब दूसरे पॉइंट पर आइए. हम दूसरा कलम अब उठाएं. According to Christian era, what was date? 26. According to Vikram calendar, what was date? 27, called the Shaptami. According to Vikram calendar, which was month? कौन सा महीना था, तो ये था. According to Vikram calendar, which was, that was माघ, माघ का महीना था. अब है according to Christian calendar, which was year 1949. According to Vikram calendar, it was Vikrami 2006. Clear? Now listen. मिति का कोई मतलब नहीं यहां पे है, पर जैसा कि हमने कहा शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष, तो पक्ष कौन सा था, शुक्ल पक्ष. तो शुक्ल पक्ष मतलब ये पक्ष था. अब रही बात, तारीख हो गई, तो हमें अब एक चीज समझना रह गया. ये क्या है फिर, शीर्ष. तो जब असेंडिंग होती है तो शीर्ष, जब चांद बढ़ रहा है तो शीर्ष है, असेंडिंग है. इन दैट रिस्पेक्ट शीर्ष, शुक्ल पक्ष में शीर्ष की प्रस्थिति बन रही थी. कुछ कहना था आपसे, ओके, ठीक है. तो ये ध्यान में रखना है. ये आपका मैंने ग्राफ करने की कोशिश करी है, इस ग्राफ को समझना है. ठीक है,
ओके एवरीवन, तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग्स। ओके वेरीवन, तो इसको आप उतार सकते हैं बेटा, इट इज फैंटास्टिक टू अंडरस्टैंड। तो शुक्ल पक्ष कृष्ण पक्ष क्या होता है, और जो कंपेयरिंग हमने एटीट्यूड आपको दिखाया है वो समझने की बात है। वो कंपेयरिंग क्या है, तो जैसे मैंने कहा कि आप इसे क्रिश्चियन एरा और विक्रम एरा में कन्वर्ट करने के लिए ये समझना जरूरी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ एनीबडी इज आस्क यू कैन रिएक्ट। ओके, listen everyone, your next topic is very clear now, medieval Indian history। मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ने जा रहे हैं और हम टॉपिक उठा रहे हैं साउथ इंडिया से, दक्षिण भारत से। और दक्षिण भारत के ये टॉपिक को देखें तो उसमें एक टॉपिक आता है चोल साम्राज्य, चोला एम्पायर। सो आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट चोला एम्पायर दैट वाज बिगिनिंग 19th सेंचुरी टिल एंडिंग 14th सेंचुरी एडी। तो हम अब सारा का सारा कंसंट्रेशन हिस्ट्री को प्रॉपर स्टार्ट करने में लगाने जा रहे हैं, और 2-4 मिनट आपको पहले सुनना है इसे उतारने से पहले। सुनिए गौर से। वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, इंडियन हिस्ट्री डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स, एंशिएंट, मिडाइवल, मॉडर्न। प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। प्राचीन भारत का इतिहास का जो संदर्भ लें तो उसमें क्या फर्क आता है, तो ध्यान से समझना है। थ्रू आउट टिल डेथ ऑफ हर्षवर्धन कंसीडर एंशिएंट इंडिया हिस्ट्री। अगर हम इधर आ जाएं तो अब देखते हैं आफ्टर डेथ ऑफ हर्षवर्धन टिल डेथ ऑफ औरंगजेब आलमगीर, near about 1000 years we have to go through. But there are the first phase of medieval Indian history that is totally connected with the ancient Indian history and their institutions. So it will be complicated to understand you. Maybe you feel complications. In that respect, I give up it. कहने का मतलब ये है 7th और 8th और 9th सेंचुरी के दरमियान बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस, किंगडम्स डेवलप हुए जो डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया का वक्त था। उसके सभी की जड़ें इंस्टीट्यूशनली एंशिएंट इंडिया से रिलेट कर रही थी। इसीलिए अगर हम मिडाइवल में उस पार्ट को उठाते हैं तो थोड़ा सा आपको कम्युनिकेशनली प्रॉब्लम हो सकता है। तो मैं नहीं चाहता इन द बिगनिंग में आप इस कष्ट को सहें, बाद में जब आप स्मार्ट हो जाएंगे हमारे जैसे ही आगे बढ़ते बढ़ते तो आप इसे समझ सकते हैं। अर्थात हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह साउथ इंडिया से स्टार्ट करने जा रहे हैं। एज यू नो दैट इन साउथ इंडिया देर आर संगम एरा। संगम, व्हाट इज संगम? वी विल डिस्कस इट। संगम काल या संगम एरा, देर आर 2 संगम एरा। The first things is that in ancient time Sangam era, that was the time 300 BC to 300 AD, near about 600 years going on. According to नीलकंठ शास्त्री, जो साउथ इंडिया के हिस्ट्री के सबसे बड़े हिस्टोरियन हुए, सबसे बड़े लेखक हुए, तो याद रखना है नीलकंठ शास्त्री के अकॉर्डिंग वो संगम जो पढ़ेंगे वो एंशिएंट में पढ़ेंगे, जिसमें आप चोल, चेर, पांड्य और क्षत्रिय पुत्र के बारे में पढ़ेंगे। 3 संगम के बारे में पढ़ेंगे।
संगम लिटरेचर के बारे में पढ़ेंगे, नेडियोन के बारे में, ठीक है, शिल्पकादिकारम, मणिमैखले, तोलकाप्पियम, नीलकेसी, वलयकेसी, कुंडलकेसी, दीज आर द बुक्स लिटरेचर्स वी हैव टू रीड आउट। तो हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं, वी टॉकिंग अबाउट मिडाइवल इंडिया चोलाज। तो वो जो चोला है संगम काल का, वो चोला नहीं पढ़ना, हमें पढ़ना है मध्यकाल का चोल साम्राज्य, जिसमें हम पढ़ेंगे राज, राजा, राजेश्वर उसी को कहते हैं, राजेंद्र फर्स्ट, कुलुंतोंग फर्स्ट, विजयालय, परांतक फर्स्ट, दीज आर कैरेक्टर्स टू रीड इट। तो चलिए हम लोग चोल एम्पायर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। तो नाउ यू हैव टू पेन डाउन दिस टॉपिक, मिडाइवल इंडिया हिस्ट्री, साउथ इंडिया, चोला एम्पायर, 9th to 14th सेंचुरी एडी। अब मैं एक ग्राफ कर देता हूं ताकि आपको एक लोकेशंस मिल जाए। तो आई एम गोइंग टू बी स्केच ए ग्राफ, ओके।
Look everyone, once again on the board. We are now going to study about Chola Empire of medieval India. So, Chola Empire capital was Urayur as a first capital, Urayur. But Vijayalaya transferred its capital from Urayur to Tanjore, bank of Kaveri river in Tamil Nadu Delta region, very fertile region. So capital was Urayur, then transferred to Tanjore, bank of Kaveri river in Tamil Nadu. Who considered founder of Chola Empire? So founder was Vijayalaya in 9th century AD. Okay, as you know that language was Tamil. Tamil was language. Family god of Chola Empire was Lord Shiva. लॉर्ड शिवा जो थे उनके फैमिली गॉड कुल देवता थे और अपने कुल देवता को वो कहते थे बृहदेश्वर, बड़ा ईश्वर, यानी बृहदेश्वर यानी बड़ा ईश्वर उनके थे। अब रही बात उनके क्वाइनेज कैसे होते थे, क्वाइनेज यानी सिक्के। तो क्वाइंस को क्या कहते, करेंसी। करेंसी को कहते थे कासू। ये सिल्वर, ब्रॉन्ज, ब्रास सब के बने होते थे पर कलेक्टिवली कासू कहा जाता था। टाइटल, टाइटल्स ऑफ किंग। जनरली राजा अपना टाइटल क्या रखते, तो ये रखते थे चक्रवर्ती गल। ये कॉमन टाइटल था इनका, चक्रवर्ती गल, ये कॉमन टाइटल था, याद रखिएगा चक्रवर्ती गल। तो ये चीजें हो गई। इनका कैलेंडर क्या था, इनका कैलेंडर था लूनर, चंद्र पंचांग। तो इनका कैलेंडर लूनर कैलेंडर था, चंद्र पंचांग था, 360 डेज होता था। उनके कैलेंडर में 360 दिन होते थे एक वर्ष में, और उससे जुड़ा एक सवाल भी आएगा, तो ध्यान देना है। ये जो येलो लाइन है वो कावेरी रिवर को दिखा रहा है। एक्चुअली कावेरी CAUVERY लिखा जाता है, पर आप के से लिख लीजिए, कोई हर्ज नहीं है, नाउन है। तो जनरली कावेरी सी से, वैसे आप के से भी लिख सकते हैं। तो कावेरी नदी के किनारे तमिलनाडु वाले रीजन में अगर हम इसको लोकेट करें पूरे राज्य को कि लोकेशन कहाँ होता है, तो ये जो लोकेशन आपका है वो लोकेशन काउंट होगा साउथ आंध्र प्रदेश एंड नॉर्थ तमिलनाडु। यही लोकेशन दिख रहा है आपको। तो ये लोकेशन था। एक साइड अरबियन सी है पर इसका बॉर्डर नहीं है, सेकेंड साइड जो बे ऑफ बंगाल है इट इज़ बॉर्डर। तो ये बे ऑफ बंगाल का कोस्टल था, तो ये ध्यान में रखना है। चलिए, ये तो जनरलाइज हम समझ गए। अब ध्यान देना है दूसरी बातों पर।
वेल नाउ गो अहेड। तो यहाँ तक समझ लीजिए, क्योंकि अब इस बोर्ड पर जो लिखा है उसको मैं रिपीट कर रहा हूँ समझाने के लिए। बहुत सिंप्लीफाइड तरीके से इसको समझना है बेटा। Look, first of all, your question is very simple. Chol Empire in South India, where is located? Location is coastal Bay of Bengal. Presently, where you have to locate it? Southern Andhra Pradesh, northern Tamil Nadu. Well, who was founder? King Vijayalaya from Urayur. और वो उरायूर से कैपिटल ट्रांसफर जस्ट कर दिया कहाँ पे? तंजौर, नोन एज तंजावर, बैंक ऑफ कावेरी। अब अगला सवाल होता है, चोल वंश के राजाओं का फैमिली गॉड, कुल देवता कौन थे? लॉर्ड शिवा। तो सवाल है, लॉर्ड शिवा को वो लोग क्या कहते थे? बृहदेश्वरा, यानी बृहदेश्वर कहते थे। ओके, अब अगला सवाल आता है, कौन सी भाषा उनकी राजभाषा थी? तमिल आ चुका था, तमिल राजभाषा थी, नो डाउट तमिल राजभाषा थी। अब अगला सवाल आता है कि ये लोग जो हैं कौन सा कैलेंडर इस्तेमाल करते? तो योर आंसर विल बी लूनर कैलेंडर। चोल साम्राज्य के कैलेंडर में कितने दिन होते? 360 दिन होते थे। अब ये 360 दिन से कैसे पता चलेगा? तो जब उत्तर मेरूर अभिलेख पढ़ाएंगे तब वहां पर लिखा है उत्तर मेरूर के लिए 360 दिन के लिए ये सभा बनी है, ऐसे मतलब एक साल के लिए है। तो ये चीज़ है। इनकी करेंसी कासू कहलाती, चाहे वो ब्रॉन्ज हो, ब्रास हो, सिल्वर हो। सामान्यतः राजा लोग कौन सी उपाधि रखते? टाइटल चक्रवर्ती गल, ये कॉमन टाइटल था इनका। अब रही बात कि कब से कब ये चोल साम्राज्य चला, तो हमारा जवाब होगा 9th सेंचुरी टू 14th सेंचुरी एडी। ये भी बात हो गई। तो ये ध्यान रखना। अब इससे आगे बढ़ेंगे, ठीक है? इससे आगे बढ़ते हैं। लोग समझना है बेटा, किंग परांतक फर्स्ट हुआ, 9th सेंचुरी में रूल किया। उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन, जिसे आप उत्तर मेरूर अभिलेख कह रहे हैं, जो तमिलनाडु का एक गांव है वहां पे प्राप्त हुआ है। इस उत्तर मेरूर अभिलेख से हमें
क्या पता चलता है? तो हमें ये पता चलता है कि चोल साम्राज्य की गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी वह ऑटोनोमस होती थी, यानी स्वायत्त होती थी। अब यहाँ से मैं आपको कहानी के रूप में चोल साम्राज्य की शुरुआत करूँगा। अभी मैं बैकग्राउंड दे रहा था, अब इसको कहानी के तौर पर सुनिए, वो ज़्यादा बेहतर आपको लगेगा। जैसा कि मैंने कहा, चोल साम्राज्य दक्षिण भारत, आज के तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में फैला हुआ था और कावेरी नदी के डेल्टाई प्रदेशों में मौजूद था, जो एक उपजाऊ क्षेत्र था। हम देखते हैं विजयालय नाम का व्यक्ति ने जो है वह चोल साम्राज्य की स्थापना किया और फिर आगे बढ़ निकला। उसने, देखते हैं, तंजौर में अपनी राजधानी बनाई और निशुंभ देवी का मंदिर बनाया। जो उसके इष्ट देवी थी, निशुंभ देवी का मंदिर बनाया। ये भी सवाल आता है। अब आगे चल करके एक राजा हुआ जिसका नाम था परांतक प्रथम। परांतक प्रथम के समय का हमें एक अभिलेख, इंस्क्रिप्शन मिला है, जिसे तमिलनाडु के उत्तर मेरूर ग्राम से मिला है, यानी विलेज उत्तर मेरूर, तमिलनाडु, इसलिए उसका नाम है उत्तर मेरूर अभिलेख। अब हमें यह समझना है कि उत्तर मेरूर अभिलेख जो मिला है उसके संदर्भ में कि नाम क्यों पड़ा, तो गांव के नाम से मिला। कहां? तमिलनाडु में। कौन सा गांव? उत्तर मेरूर। अभिलेख का नाम उत्तर मेरूर इंस्क्रिप्शन। अब सवाल क्या है इसमें, सुनिएगा। इससे हमें पता चलता है कि तमिलनाडु क्षेत्र में, चोल साम्राज्य में, गांव की जो प्रशासनिक व्यवस्था होती थी, लोकल गवर्नमेंट, बहुत ही ऑटोनोमस होती थी, स्वायत्त होता था। राजा जनरली हस्तक्षेप नहीं करते थे। उसी के बारे में सारा जिक्र है। वो जिक्र क्या है, सुनिए। जो व्यक्ति इसे लिख रहा है वो ये लिख रहा है कि मैं इस गांव के पंचायत के कहने पर जो फैसला हुआ है वो चीज़ें मैं लिख रहा हूं, गांव के पंचायत के कहने पर। और ये उत्तर मेरूर गांव के एक मंदिर की बाहरी दीवारों पर ये बातें लिखी हुई है। लिखा जो कुछ भी है उसमें ये लिखा है कि गांव की जो पंचायत होगी उस पंचायत को देखें तो 30 सदस्यों से बनेगी। यानी गांव को, यानी कि ग्राम सभा अलग चीज़ है, गांव की पंचायत के संदर्भ में देखें तो उसकी प्रशासनिक व्यवस्था के तहत गांव को 30 हलकों यानी कि वार्ड में बांटा गया। हर एक वार्ड के लिए एक मेंबर होगा। अब सवाल है कि ये मेंबर कौन एज ए कैंडिडेट खड़ा हो सकता है, तो उसके लिए दिया हुआ है कि मिनिमम एज 35, मैक्सिमम एज 70, 35 और 70 के आयु के बीच के ही व्यक्ति इसमें कैंडिडेट के तौर पर आ सकते हैं। दूसरा कहा गया है कि एक मिनिमम पीस ऑफ लैंड होनी चाहिए, यानी कि वो अपना जो खर्च है, संपत्ति है उसका अपना, अपने खर्च के लिए, तो वो भ्रष्टाचार नहीं करेगा, ऐसा मान के चलिए। ठीक है, तो एक मिनिमम प्रॉपर्टी की बात करता है, या कहता है कि मिनिमम आय होनी चाहिए, तो आय की भी बात करता है। फिर कहता है कौन नहीं हो सकता कैंडिडेट, तो जो नहीं हो सकता उसके बारे में कहा जा रहा है कि अगर कोई कभी सदस्य रहा और उसने किसी भी प्रकार से कोई भ्रष्टाचार किया है या कोई हिसाब किताब अब तक नहीं दिया है, उस जमाने के हिसाब से तब तक नहीं दिया है, या उसने व्यभिचार किया है, या उसे गधा चढ़ाया गया है। याद रहे, मध्यकाल में गधा चढ़ना का मतलब है, चढ़ाने का मतलब है बलात्कारी हैं आप, रेपिस्ट हैं आप। तो कालिक पोत के, चूना लगा के, बेल मुड़ा के जो चढ़ाया जाता है गधे पर ताकि उसकी निंदा हो, समाज निंदा करे, तो यानी गधा ना चढ़ा हो, ऐसे लोग ही रह सकते हैं। इतना ही नहीं, जिसने भ्रष्टाचार किया है उसकी 3 पीढ़ियां नहीं बन सकती कैंडिडेट या मेंबर, और एक ही तरफ से नहीं, पिता तरफ से भी और मां की तरफ से भी नहीं बन सकते। ये भी एक बड़ी बात कही गई है। हमें भ्रष्टाचार के दरमियान वहां के इस प्रशासन से सीखना चाहिए। चलिए, अब कहा गया है कि एक वार्ड में कई मेंबर हो सकते हैं एज ए कैंडिडेट,
एज ए कैंडिडेट कई हो सकते हैं। इन सभी कैंडिडेट के नाम की पर्ची बना करके, चिट बना करके एक खाली मटके में डाल दिया जाएगा। अगर मान ले एक वार्ड है और उसमें 10 नाम आए तो 10 के नाम की पर्ची मटके में डाल दी जाएगी और फिर एक अननोन अबोध बालक को बुलाया जाएगा और उसे कहेगा वो पर्ची उठाए, मिला करके एक पर्ची उठा ले। वह जो पर्ची उठा लिया उसमें जिसका नाम हुआ वह उस वार्ड का वार्ड कमिश्नर यानी सदस्य घोषित किया जाएगा। यानी ये लॉटरी सिस्टम है, भाग्य के आधार पे है। और देखिए अब आपसे सवाल क्या पूछता है, आपसे सवाल यही पूछता है चोल में, इनमें से वह कौन सी राज्य व्यवस्था थी या वंश था या साम्राज्य था जहां पर स्थानीय शासन बहुत ही स्वायत्त था। पूरे विश्व में चोल एम्पायर को पढ़ाया जाता है, खासकर इट्स ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। तो याद रखिएगा चोल के लिए यह बहुत हाईलाइटेड क्वेश्चन है, ठीक वैसे ही जैसे अलाउद्दीन के समय या पूरे दिल्ली सल्तनत के लिए मार्केट कंट्रोल सिस्टम, वैसे यहां पे ऑटोनोमस विलेज एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इज ए हाईलाइटेड क्वेश्चन फॉर एवरी एग्जाम। याद रखिएगा, कमेंट के रूप में भी आ जाता है ये यूपीएससी में लिखने के लिए, पूरे सिस्टम को लिखे। खैर छोड़िए, अब बात को आगे बढ़ाएं। अब ये 30 सदस्य मिलकर के एक महासमिति बनाएगी। ये 30 सदस्य फिर 6 सब कमिटी में डिवाइड हो जाएगी, उप समिति में। एक का काम होगा इरिगेशनल वाटर्स देखना, ड्रिंकिंग वाटर को देखना, जल प्रबंधन, झील हो, नदी हो, तालाब हो, कुआं हो, जल प्रबंधन। दूसरे का काम था कि उस क्षेत्र में, उसके गांव में कौन बाहरी लोग आते हैं जाते हैं, व्यापार वाणिज्य क्या करते हैं, लेन देन, उस पर नजर रखना, उसकी रजिस्ट्री करना, निबंधन। तीसरे का काम था जन्म और मृत्यु से संबंधित सारे आंकड़े रखना, यानी पंजीयन का काम। ठीक है, इसी तरह से एक का काम था पूरे ग्रामीण व्यवस्था की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेता था। कहने का मतलब है एक जो था वो पूरा टैक्स वसूलता था। तो ये व्यवस्था थी। हाँ, सारे दीवानी यानी फिनेंस से जुड़े फैसले, विरासत से जुड़े फैसले, छोटे मोटे अपराध के फैसले पंचायत ही कर लेती थी। तो याद रखिएगा, सिर्फ फांसी की सजा राजा के लिए थी कि वही तय करेगा। आज भी हमारे राष्ट्रपति सिंबॉलिकली अंततः लास्ट अपील तो हम वही करते हैं ना। तो ये चीज़ें हैं, तो याद रखने की चीज़ है। स्वायत्त ग्रामीण व्यवस्था थी, 30 सदस्यों से ग्राम पंचायत बनती थी, उनमें से 6-6 की 5-5 की 6 उप समितियाँ हो जाती थी और इन सभी ग्राम पंचायत का कार्यकाल 360 डेज यानी 1 साल होता था। ये भी ध्यान में रखना है। तो इनका काम देखा, इनका टर्म देखा, इनकी चुनाव की प्रणाली देखी, लॉटरी सिस्टम कहलाएगा। इनके कैंडिडेट्स के लिए जो एलिजिबिलिटी और कंडीशन है वो भी आप देख लिए। इस तरह से स्वायत्त ग्रामीण व्यवस्था के ऊपर सवाल आएगा कि ये किस समय का अभिलेख है, तो बोलेंगे उत्तर मेरूर अभिलेख परांतक फर्स्ट का समय है। दीज आर द टोटल क्वेश्चंस, यहाँ से खूब सवाल आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, उत्तर मेरूर अभिलेख। तो परांतक फर्स्ट से ये इंपॉर्टेंट है। अब उससे आगे बढ़िए। कोई सीक्वेंस में सारे राजाओं को पढ़ना जरूरी नहीं है। सवाल है कि आपका सरोकार किससे है एग्जामिनेशन पास करने से। क्या क्या सवाल आते हैं उस पर ध्यान देना है, उनको हम पूरा का पूरा लपेट लेंगे, उसकी चिंता आप छोड़ दीजिए। बस आप हम लोगों की स्टडी को देखिए, जो टीचिंग कर रहे हैं उस पर बस ध्यान दीजिए कि सर कहाँ फोकस्ड कर रहे हैं, ये काफ़ी होगा आपके लिए। नाउ लिसन केयरफुली। अब आगे चल करके 980 से 1012 एडी के दरमियान एक किंग आया जिसका नाम है राज राजा फर्स्ट। उन्हीं को कहते हैं राज राजेश्वर फर्स्ट, प्रथम। तो ध्यान देना है, इनके समय के संदर्भ में बात करें तो राज राजा फर्स्ट का जो संदर्भ है उसको समझिए। राज राजा फर्स्ट साम्राज्यवादी सोच का था। ही वॉज बिलीव इन इम्पेरियलिज्म, यानी साम्राज्य को लगातार फैलाने में। जैसे आज चाइना को देखिए, जैसे आज रसिया को देखिए, और ऐसे कई हैं, और बहुत साल पहले तक तो कई थे। तो याद रखना है कि इम्पेरियलिज्म में बिलीव करता, साम्राज्यवादी सोच का था, और उसने क्या क्या काम किए ये देखना है। राज राजा फर्स्ट के किए गए कार्यों पर नजर डालें। पहला तो ये, पूरे भारतीय इतिहास में
प्राचीन काल से लेके 1947 आधुनिक काल तक जो सबसे बड़ी, सबसे ताकतवर नौसेना थी वो चोलों की थी, राज राजा की खास करके थी। इसलिए ध्यान से सुनेंगे। बंगाल की खाड़ी के चप्पे चप्पे पर उसका कब्जा था, एक एक द्वीप तक उसका प्रभाव क्षेत्र और कब्जा था, यानी पूरे बंगाल की खाड़ी को ऑक्युपाई करके रखा था। और अपने नौसेना के दम पर इसने मालदीव को भी अपने प्रभाव क्षेत्र में रखा था। नॉर्दर्न श्रीलंका विक्ट्री किया, उत्तरी श्रीलंका, और उत्तरी श्रीलंका की राजधानी होती थी पलनूरवा। इसने पलनूरवा को डिस्ट्रॉय कर दिया, ध्वस्त कर दिया, और उसकी जगह पर एक नया कैपिटल बसाया, अनुराधापुरम। हमारे प्राइम मिनिस्टर, जो फॉर्मर कहेंगे या आप एक्स कह लीजिए, एक्स प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी भी वहां गए हुए थे, और हमारे मोदी जी भी जो है, मोदी जी 1 में वहां गए हुए थे एज ए प्राइम मिनिस्टर, अनुराधापुरम। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। तो ये याद रखने की चीज है। तो उत्तरी श्रीलंका विजय किसने किया? राजराजा ने किया, ये ध्यान में रखना है। और तमिलों को बसाया, दैट इज नो डाउट। नई राजधानी बसाई, पुरानी राजधानी पलनूरवा को ध्वस्त किया, तो ये ध्यान में रखना है। दूसरा, हम देखें बंगाल की खाड़ी को राज राजा के समय खास करके चोलों की झील, द लेक ऑफ चोला कहा जाता था। द लेक ऑफ चोला का संदर्भ यह है हमारा कि यूं समझिए उसके लिए बहुत इजी गेम था, बाएं हाथ का खेल था, लेफ्ट हैंड गेम, तो इसलिए कहा जा रहा है। दूसरी बातों पर आइए। तो अब आपने देखा बंगाल की खाड़ी को लेक ऑफ चोला कहा गया, उत्तरी श्रीलंका विजय इसने किया, और पलनूरवा राजधानी को ध्वस्त करके अनुराधापुरम राजधानी बसाई। फिर उसके बाद हम देखें तो मालदीव विजय किया, अपने प्रभाव क्षेत्र में लेकर आया। तो ये सब सारे काम किए। अब जरा ध्यान दें, अब उसके जो गुरु थे अली मोरू वर्मन, बहुत जगह उन्हीं के नाम आते हैं कि राजराजा का ही एक नाम है, बहुत जगह कहते हैं इनके कुल पंडित थे। जो भी है, उनके पंडितों ने ये कहा कि बहुत मारकाट हो गया, अब प्रजा के सामने भक्ति भाव पेश किया जाए ताकि आपका मान मर्यादा हर चीज बना रहे। इस ख्याल से उसने अपने कुल देवता बृहदेश्वर लॉर्ड शिवा के लिए भव्य मंदिर का निर्माण किया। तंजौर में ही 1012 एडी में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण पूर्ण हुआ। यह मंदिर बहुत ही भव्य है, बहुत ही ऊंचा है, और मंदिर पूरब और पश्चिम के डायरेक्शंस में बना हुआ है। इस मंदिर की कंप्लीटमेंट 1012 में हुई, अतः 2012 में भारत सरकार ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजन किया था, और लगभग 1000 प्लस भरतनाट्यम डांसर्स परफॉर्म करके इस मंदिर के 1000 सेलिब्रेशन को सेलिब्रेट किया गया था। खैर, अब थोड़ा इस मंदिर पर गौर फरमाइए। ये जो मंदिर है पिरामिडिक स्टाइल में डेवलप होता है, और इसके जो टॉप का स्टोन है, कवरिंग स्टोन, वह है 80 टन वजन का सिंगल स्टोन है। रिमेंबर, क्लास 6 एनसीईआरटी पढ़ेंगे, उसमें 90 टन का लिखा हुआ है, तो वो छोटी क्लास की किताब है, बड़े ऑथर्स ने इन्हें 80 टन कहा है। पर 80 और 90 टन में ज़्यादा नहीं फंसना है, बहुत भारी है, और कोई एक ही लोकेट करेगा 80 टन या 90 टन। तो एक बात तो ये हुई। दूसरी बात, इस मंदिर के सबसे टॉप में एक शिखर है, मंदिर के सबसे टॉप में शिखर है, और शिखर की छाया मंदिर के बिल्डिंग पर ही सुबह शाम कितना भी विस्तारित छाया हो गिरती है, जमीन को नहीं छूती। और सवाल यूं आता है, दक्षिण भारत का वह मंदिर जिसके शिखर की छाया कभी धरती पर नहीं पड़ती, द शेडो ऑफ शिखर नेवर फॉल on the land, which temples? Your answer will be Brihadeshwara temple. And this temple is so important because of its architect. UNESCO enlisted, ये विश्व विरासत की सूची में
दर्ज भारत का कई मंदिरों में एक मंदिर है, ये भी ध्यान रखना है। तो ये देखा आपने लॉर्ड शिवा का बृहदेश्वरा टेम्पल, तो इसको याद रखना है किसने बनाया, कहाँ पर है, यूनेस्को लिस्टेड है, शिखर की छाया धरती पर नहीं पड़ती, बात समझ में आ गई होगी। और चूंकि जो बनाया उसकी भी मूर्तियां लगी है, इसीलिए उस मंदिर का एक नाम है राजराजेश्वर मंदिर, राजराजा मंदिर। तो ये ध्यान में रखने की चीज़ है। चलिए, राजराजा समय के साथ गए, लेकिन रिमेंबर चोल साम्राज्य में एक परंपरा थी कि अगला राजा कौन होगा उसके लिए भावी राजा को एक युवराज नाम से घोषित किया जाता। तो जितने भी राजकुमार होते जिसे भावी शासक बनाया जाता उसे एक युवराज नाम दिया जाता, अर्थात युवराज की घोषणा राजा स्वयं जिंदा रहते ही कर देते थे, यानी फोर्थ कमिंग ये किंग है। तो 1012 में युवराज की घोषणा भी हुई और वो युवराज थे राजेंद्र फर्स्ट। 1014 में राजराजा दिवंगत हो गए, डेथ कर गए, अतः उनकी जगह पर राजराजा की जगह पर राजेंद्र फर्स्ट आए। तो अब हम बात करते हैं राजेंद्र फर्स्ट की। बस कहानी सुनिए, उसका जुबानी में लिख दूंगा जो भी इस पर उतर सकेगा। लुक, राजेंद्र फर्स्ट लाइक फादर लाइक सन, जस बाप तस बेटा, यानी पिता तुल्य ही थे जनाब, पिता जैसे ही थे, दोनों में बड़ी सिमिलैरिटीज थी। ये भी साम्राज्यवादी थे और पिता के अधूरे काम को पूरा भी किया। क्या किया तो समझना है। राजेंद्र फर्स्ट ने संपूर्ण श्रीलंका विजय किया। कंप्लीट श्रीलंका विक्ट्री डन बाय राजेंद्र फर्स्ट। बाप ने उत्तरी श्रीलंका, इसने संपूर्ण श्रीलंका। श्रीलंका जीतकर वहां के राजकुमार से अपनी पुत्री की शादी कर राजनीतिक वैवाह भी स्थापित किया, वैवाहिक संबंध स्थापित किए, कूटनीतिक संबंध स्थापित किए और भारत के तमिलियन को भी बसाया वहां पर। याद रहे, तभी से श्रीलंका में तमिल संख्या है और आपको भी मालूम है लगभग 4-5% वहाँ की संख्या जो है, जनसंख्या, वो तमिल है और लगभग 12-13% के आसपास मुस्लिम है, रेस्ट ऑफ सिंहली हैं और 1 या 1.5% क्रिश्चियन सोसाइटी है। तो रिमेंबर, तब से तमिल बस रहे हैं। तो इसने संपूर्ण श्रीलंका विजय किया, एक पॉइंट। दूसरे पॉइंट पर ध्यान दीजिए, राजेंद्र फर्स्ट ही वो शासक है जिसने दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपीय देशों में अपने प्रभाव क्षेत्र को कायम किया, अपने सैनिक अभियान किए, सांस्कृतिक प्रायोजन से बहुत सारी चीज़ों को स्थापित किया और खास करके दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीपीय देशों में व्यापारिक उपनिवेशों की स्थापना की। व्यापारिक उपनिवेश यानी ट्रेड कॉलोनी। क्वेश्चन सीधा आता है, हु वॉज द किंग ऑफ साउथ इंडिया हु स्प्रेडेड ट्रेड कॉलोनीज इन साउथ ईस्ट एशियन नेशन। तो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों के द्वीपीय देशों में राजेंद्र फर्स्ट ने व्यापारिक उपनिवेश कायम किए। वेरी हॉट क्वेश्चन। चलिए अब आगे की बात करें बेटा, अब अगले मुकाम पर आइए। अब हम देखते हैं, अक्सर देखा गया प्राचीन काल में भी कि उत्तर भारत के राजा दक्षिण भारत में विजय अभियान किए और जीत हासिल करी। समुद्रगुप्त ने भी दक्षिण भारत के 3 राजाओं के संग त्रिवीर संघ को पराजित किया था और इसके जहन में यह बात कौंध रही थी। तो इसने ये सोचा था, क्यों ना मैं उत्तर भारत को जीतूं, शक्तिशाली है। तो उसने यही सोच करके अपने युवराज बेटे, राजकुमार बेटे विक्रम चोल को सेनापतित्व दिया, सेनापति अपॉइंट किया और उसे फौज देके कहा, नाउ यू हैव टू गो विक्ट्री ऑन नॉर्थ इंडिया। तो वो जो है समुद्रगुप्त जिस रास्ते से दक्षिण भारत पर आक्रमण किया था, वो रास्ता था उड़ीसा का तट, कलिंग का तट। तो कलिंग के रास्ते से ही विक्रम चोल उत्तर भारत की ओर प्रस्थान किया। उस वक्त बंगाल में महिपाल नाम का शासक शासन कर रहा था जो पाल वंश का था। महिपाल को इसने पराजित किया और पराजित करने के बाद सिंबॉलिकली
गंगा जल को भी लेकर आया और ये गंगा जल कावेरी नदी में पोरिंग की गई, डाली गई। तब से बेटा कावेरी नदी को पवित्रता के ख्याल से दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, द गंगा ऑफ साउथ इंडिया। तो मैंने कहा राजेंद्र फर्स्ट के समय में राजकुमार विक्रम चोल ने युवराज की हैसियत से सेनापतित्व करके उत्तर भारत के बंगाल को जीता और महिपाल को हराया और सांकेतिक रूप से गंगा जल भी लेकर आया, जिसे कावेरी नदी में डाला गया। अब जरा सोचिए, राजेंद्र फर्स्ट जो है ये, अब देखते हैं, ये राजेंद्र फर्स्ट का समय है, बेटा सेनापति है, वो जीत कर आया है। तो अब राजेंद्र फर्स्ट एक टाइटल लेगा, एक उपाधि लेगा, गंगे कोंडा। कोंडा का मतलब विक्टर, विजेता, और गंगे मतलब गंगा, गंगा को जीतने वाला। और आपसे सवाल यही करता है, दक्षिण भारत का वह शासक जो उत्तर भारत के बंगाल को जीतने का दावा करता है, जो गंगा नदी को जीतने का दावा करता है, दक्षिण भारत का वह शासक जिसने गंगे कोंडा की उपाधि धारण की, राजेंद्र फर्स्ट। अब मैंने पहले ही कहा था ये लाइक फादर और लाइक सन की बात है। तो राजेंद्र फर्स्ट ने अब क्या किया, बाप की तरह एक बड़ा भव्य मंदिर का फिर निर्माण किया, पर अब मंदिर दूसरी जगह बनाएगा। कहां बनाएगा तो सुनिए, इसने अपने टाइटल के आधार पर एक न्यू कैपिटल सिटी बनाया, सेकेंड कैपिटल, न्यू कैपिटल सिटी, और अपने टाइटल के आधार पर उस सिटी का नाम रखा गंगे कोंडा चोलापुरम। गंगे कोंडा चोलापुरम। तो गंगे कोंडा चोलापुरम, बैंक ऑफ कावेरी इन तमिलनाडु, developed as a second capital by Rajendra I on his title, where he also constructed a temple like father like son given the same name, Brihadeshwara temple. This temple is very beautiful. वो गॉर्जियस है, तंजौर का मंदिर, ये ब्यूटीफुल है। वो यूनेस्को में है, पर ये यूनेस्को में शामिल नहीं है, पर बहुत ही खूबसूरत है। तो आप राजेंद्र को देख रहे हैं, जैसा फादर है वैसा बेटा है। अब आइए बीच में हम एक दो को छोड़ दें, हमारे लिए जरूरत नहीं है। अब सीधी बात करें, एक शासक हुआ कुलुंतोंग फर्स्ट, 1080 के आसपास रूल कर रहा है। और कुलुंतोंग फर्स्ट जब आया तो उसने चीन के साथ व्यापार वाणिज्य को बढ़ाने का प्रयास किया और एक बड़ा सा व्यापारिक प्रतिनिधि मंडल चीन के राजा के दरबार में भेजा, यानी ए बिग ट्रेड डेलीगेशन, ट्रेडर्स डेलीगेशन टीम सेंट टू चाइनाज किंग कोर्ट। चाइना ने भी प्रत्युत्तर में उससे भी बड़ा एक डेलीगेट्स भेजा, और डेलीगेट्स भेजा ही नहीं, यूं समझिए कि उसने बहुत सारे गिफ्ट, नजराना भी भेजा, और अच्छे संबंध कायम हुए और व्यापार वाणिज्य चला। आई थिंक हम ये आपको कह रहे हैं कि किस चोल शासक ने चीन के साथ व्यापारिक संबंध कायम किए, तो हम बोलेंगे क्या, कुलुंतोंग फर्स्ट। चूंकि व्यापार वाणिज्य से इतना सारा पैसा आने लगा कि इसने बहुत सारे टैक्सेस माफ कर दिए और एग्जेम्प्टेड, यानी समाप्त भी कर दिए। यानी तमिल भाषा में करों को समाप्त करने वाला को सुंगन वृत्ते कहा गया है। अब आपसे यह सवाल करता है, वह चोल शासक जिसे सुंगन वृत्ते कहा गया है, तो यह कुलुंतोंग फर्स्ट है, सुंगन वृत्ते। चलिए अब मैं बात करूं तो राजाओं की बात नहीं करूंगा। देयर इज नो क्वेश्चंस अमंग किंग्स नाउ सच इंपॉर्टेंट। किंग्स तो यहां 20-25 हुए, हमें पढ़ने थे 4-5। अब जो मैं बात करने जा रहा हूं उसको गौर से सुनिए। अब हम बात करें तो चोल काल के संदर्भ में एक बहुत बड़े लेखक, साहित्यकार, विद्वान हुए तमिल भाषा के, जिनका नाम था कंबन। तो कंबन जो हैं वो तमिल भाषा में रामायण लिखे, तो उसे कंबन की रामायण कहते हैं। तो तमिल रामायण किसने लिखी, कवि कंबन ने लिखी। ठीक है, कंबन का जो समय है
उसे तमिल काव्य का स्वर्ण काल कहते हैं, तमिल साहित्य का स्वर्ण काल कहते हैं। यानी द गोल्डन एरा ऑफ तमिल लिटरेचर इज कंबन एरा। हु रोट रामायण इन तमिल लैंग्वेज? कंबन रोट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो कंबन की बात हो गई, सभी राजाओं की बात हो गई। अब हम टेम्पल्स पे कुछ बात करें। रिमेंबर, चोल साम्राज्य के राजाओं का खजाना कुंभकोणम में रहता था। याद रहे, समय के साथ कुंभकोणम भी कैपिटल बना। आज एक डिस्ट्रिक्ट है तमिलनाडु में। कुंभकोणम में भव्य मंदिर है और यहां भी लॉर्ड शिवा का मंदिर है। तो कुंभकोणम मंदिर में चोलों का खजाना रहता था। दूसरा सवाल करता है कि चोल काल में सबसे ज्यादा प्रतिमा, मूर्तियां किसकी बनी? जनरल क्वेश्चंस अगर देखें तो बच्चे टिक लगाते हैं, लॉर्ड शिवा की बनी होगी, कुल देवता की बनी होगी, जैसा ऑप्शन देता है। नो, इन चोला पीरियड द मैक्सिमम यूनिट ऑफ स्टैचूज मेड ऑफ मंकीज, बंदरों का स्टैचू सबसे ज्यादा बना है। यह ध्यान में रखना है, बंदरों का। अब आ जाइए टेम्पल्स। यहां एक टेम्पल है, चिदम्बरम स्वामी टेम्पल, जो कडलूर डिस्ट्रिक्ट, तमिलनाडु कोस्टल है। चिदम्बरम, साउथ इंडिया में शंकर का नाम चिदम्बरम है, महादेव का नाम चिदम्बरम है। और चोल साम्राज्य के राजाओं ने इस मंदिर का निर्माण किया। चिदम्बरम टेम्पल को ध्यान से समझिए। यहां पर लॉर्ड शिवा का जो मूर्ति है, स्टैचू है, वह उनका तांडव रूप है। हम यहां तांडव रूप बनाएंगे भी तो आप नहीं देख पाएंगे, बिकॉज यू नो बेटर। तो तांडव रूप है। ऐसा कॉन्सेप्ट है साउथ इंडिया में कि पार्वती ने अपने पति महादेव से विनती करी कि हमें भी तांडव नृत्य सिखा दीजिए। तो शंकर जी पार्वती को नृत्य सिखा रहे हैं, नृत्य का प्रशिक्षण दे रहे हैं। उस टाइम का ये इनका स्टैचू है तांडव का। और याद रखना है, ये जो स्टैचू है, इस स्टैचू को एज ए डांस टीचर माना जाता है, क्योंकि वो एज ए टीचर टीच कर रहे हैं। तो इसलिए जब सवाल पूछे लॉर्ड शिवा एज ए डांस टीचर, लॉर्ड शिवा एज ए डांस टीचर, विच स्टैचूज इज नोन? योर आंसर विल बी नटराज। नृत्य करता हुआ नृत्य का राजा नटराज। मतलब मेरा ये कहना है कि लॉर्ड शिवा एज ए डांस टीचर, इस स्टैचू को क्या कहते हैं? योर आंसर विल बी नटराज। नटराज की मूर्ति साउथ इंडिया में किसके समय बनी? चोला। नटराज की मूर्ति कहां है? चिदम्बरम मंदिर। लॉर्ड शिवा एज ए डांस टीचर, दिस स्टैचू इज वेयर सिचुएटेड? चिदम्बरम टेम्पल। वेल क्लियर? अब आगे बढ़िए और खूब। अब एक भेद बता दूं, गुप्त काल में भी नटराज की मूर्तियां बनी हैं और उन मूर्तियों में गुप्त काल में हम देखते हैं 4 बाजू हैं और 8 हाथ हैं। 4 बाजू 8 हाथ। जबकि चोल काल के नटराज में 2 बाजू हैं, 4 हाथ है। ये फर्क है। यूपीएससी आज से 10 साल पहले ये पूछ चुका है, ध्यान में रखिए, ये फर्क है। लेकिन मैं खुद ही कह रहा हूं बेटा कि चूंकि अब कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होता यूपीएससी के प्री में, जस्ट एक जीएस पेपर होता है, तो अब हिस्ट्री से क्यों उतना सवाल करेगा? क्योंकि सभी क्वेश्चंस मिलके आने हैं। तो बहुत ज़्यादा तो 7, 8 या 10, 12, 13, उससे ज़्यादा नहीं होगा। तो इतने गहरे गहरे सवाल अब नहीं आते। पर एज ए स्टूडेंट यू हैव टू बी अंडरस्टैंड। नाउ लिसन। तो चिदम्बरम मंदिर, कुंभकोणम मंदिर, बृहदेश्वरा एट तंजौर एंड बृहदेश्वरा टेम्पल एट गंगैकोंडा चोलापुरम, ये भी बना। सिक्के आप जान गए कासू थे। अब रही बात चोल काल के ग्राम को क्या कहते? ऊर। द विलेज इज कॉल्ड ऊर। चोल काल में ग्राम सभा को क्या कहते? उरार। तो याद रखिएगा, उरार कहते। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब है 2 तरह के गांव होते, एक तो सामान्य गांव और एक होते जहां बनिए लोग, व्यापारी लोग मात्र रहते, बनिए व्यापारी लोग ही रहते। वलंजियार,
रोमिला थापर बहुत अच्छे से लिखती हैं, इस तरह के गांव के बहुत सारे नाम के वो देती हैं, वलंजियार, मनीग्रामम। तो ऐसे दो गांव हैं, वलंजियार और मनीग्रामम, जो व्यापारियों की बस्ती थी, और ये दो श्रेणियां भी थी व्यापारियों की, याद रखिएगा। तो मैं चोल साम्राज्य के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप तक लाने का प्रयास किया है। यकीन मानिए 10 इयर्स जाके पलटिए और क्वेश्चंस यहीं से आएंगे। अब इन्हीं चीज़ों को मैं बोर्ड पे लिखूंगा। बोर्ड पे बहुत शॉर्ट लिखने की जरूरत है, इतना नहीं। कोई काउंटर क्वेश्चंस है तो पूछिए बेटा। चलिए, नाउ अब बोर्ड वर्क कर लेते हैं बेटा। राज राजा फर्स्ट मैंने सब समझा दिया है बेटा, अब बस लिखना है हल्का सा। राज राजा फर्स्ट 980 एडी से 1014 एडी। साम्राज्यवादी है, बिलीव इन इंपेरियलिज्म। विक्ट्री ऑन नॉर्थ श्रीलंका, सेटअप न्यू कैपिटल अनुराधापुरम in place of Palanurava. Palanurava. Bay of Bengal, consider the Lake of Chola. His navy consider most powerful in the world. He built Brihadeshwar temple at Tanjore. UNESCO listed its Shikhar shadow
not fall on the earth. Its covering a stone is 80 tons weight. So please pen down, and I am going to be break you. After 10 minutes later, we will come back again. So it is time for tea break, okay?